Now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic from consolidation to momentum, insight into spider congestion zone. Speaker of today's webinar, Mr. Tilak. Now I would like to invite Tilak. Tilak, you can start the webinar. Thank you so much. So today we will starting the webinar. So the topic for the today is from consolidation to momentum, insights into spider congestion zone. So I will quickly turn off my camera and we will start with the today's webinar topic. So flow of the webinar will be we will discussing what is congestion zone. Next will be how to use the spider congestion zone. After that, we will discuss the technical query and scanner which we have created. And the last is where to take the entry as well and exit. Okay. So what is congestion zone? So what is basically the congestion zone? So congestion zone क्या होता है ना? Basically there is a consolidation happening in the stock. Okay. So a congestion zone refers to a price range where a financial assets price moves sideways, showing little clear upward or downward trend. So इसमें stock sideways रहता है. तो upward और downward trend मतलब हम लोग आइडेंटिफाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक अभी साइडवेज है. This zone typically occurs when buyers and sellers are in relative equilibrium, leading to a consolidation phase. ये जोन जब भी आता है तभी जब बायर्स और सेलर्स मतलब दोनों इक्वल नंबर ऑफ उसमें है. ठीक है, बायर्स भी इक्वल है और सेलर्स भी इक्वल है, तो वो स्टॉक का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाने नहीं देते. Okay, so basically this is the congestion or consolidation zone which we can see here. Okay, so next we will discuss is what is the characteristics of congestion. So congestion zone में क्या होता है? Congestion zone में सबसे पहली चीज तो ये होती है sideways price movement. The price remains within a well-defined range, neither breaking out significantly higher nor lower. So सबसे पहला जो congestion zone का कैरेक्टरिस्टिक है वो एक sideways price movement रहता है. तो प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है. अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो जैसे कि हम देख रहे इधर विप्रो में. ठीक है, तो ये विप्रो में इधर कंजेशन जोन या फिर कंसोलिडेशन इधर हो रहा था. एज सुन एज ब्रेकआउट हैपेंड हियर, तो ब्रेकआउट में वापस रिटेस्ट करने नीचे आया और उसके बाद इसने एक लगातार एक रैली दिया अप साइड के लिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंजेशन जोन इज. द स्टॉक रिमेन्स साइडवेज इन द zone of upper and lower zones. The next characteristic of the congestion zone is low volatility. So जब भी ये जोन क्रिएट होता है तभी हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम में ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं रहा है स्टॉक. ठीक है, ट्रेडर्स ऑफन ऑब्जर्व रिड्यूस वॉल्यूम और फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम विद इन दिस रेंज. अगर हम ये रेंज की बात करें तो ये रेंज में ज्यादा वॉल्यूम अपने को दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो ये रेंज जब भी कंसल्टेशन होता है तभी वॉल्यूम एकदम घट जाता है. ठीक है, नेक्स्ट characteristic is indecision or balance. It reflects market indecision where neither buyers nor sellers have enough strength to push the price decisively in one direction. So there is indecision. सेलर्स या फिर बायर्स दोनों में से किसी के पास भी स्ट्रेंथ नहीं है कि एक जगह पे प्राइस वो मूव कर सके. ठीक है, और द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज percussor to breakouts. A breakout above the resistance may signal the bullish trend, while a breakdown below the support level could indicate the bearish trend. अभी जिधर भी कंसोलिडेशन हो रहा है अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जाएगा. और जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक अभी बेरिश ट्रेंड में जा सकता है. सो बेसिकली these are the characteristics of congestion zone. So अभी मैं एक पोल लॉन्च करूंगा. The next poll would be, have you used this spider congestion zone before? So I will request all of you to answer in the poll. I am seeing that many of you have not used the congestion zone. So I would request every one of you to answer in the poll so that I can understand and I can explain accordingly. Okay. So I can see that more than 50% of you have not used the spider congestion zone before. So we will discuss now how to use spider congestion zone and what are the parameters we can use here. Okay. So हम लोग अभी जाते हैं सॉफ्टवेयर में जाते हैं. ठीक है,
अभी इसमें क्या है ना, मैं नया चार्ट एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसमें हम राइट क्लिक करेंगे ना तो ऐड स्टडी का ऑप्शन है, तो जरा एस प्रेस करने पे नीचे मेरे को स्पाइडर कंजेशन जोन करके मेरे को एक स्टडी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टडी। सो अभी मैं आपको पैरामीटर्स क्या क्या है इसके वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पैरामीटर्स में सबसे पहले तो आपको इधर बैक बार मिलेगा। तो बैक बार का मतलब क्या है, अभी अगर मैं बैक बार 1 रखता हूँ तो इसका मतलब जो है वो है, अगर एक कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो मेरे को इधर फाइंड आउट करके मिलेगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं बैक बार 1 रख देता हूँ। ठीक है, इसमें EXP परसेंट में 0 रखता हूँ और जोन लेंथ को 5 रख के एरर को 0 करके मैं ऐड कर देता हूँ। तो अभी इसमें मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बैक बार 1 रखा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि एक जो कैंडल है, एक कैंडल के अंदर जितने भी कैंडल्स बने हैं, ये मेरा एक कंजेशन या फिर कंसोलिडेशन के हिसाब से ये ले रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद मैंने जोन लेंथ को 5 रखा है, इसका मतलब क्या है, मिनिमम अगर 5 कैंडल्स बनेंगे ये जोन के अंदर तभी मेरा ये जोन क्रिएट होके आएगा। जो नेक्स्ट है वो एरर 0 रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये कंजेशन जोन है, ठीक है, इसके ऊपर या नीचे एक कैंडल ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे जा रहा है जोन के, तो हम लोग उसको एक एरर गिनेंगे। दूसरा कैंडल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग उसको सेकंड एरर गिनेंगे। तो हम लोग एकदम फाइन कंसोलिडेशन फाइंड कर रहे हैं कि एक जोन के अंदर ही रहना चाहिए, ज्यादा ऊपर या फिर नीचे जोन के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एरर 0 रखें। अभी इसमें आपको EXP परसेंटेज करके भी दिखा रहेगा। अभी व्हाट इज दिस बेसिकली, अभी इसको अगर मैं 1% करता हूँ तो बेसिकली क्या हो गया ना कि ये जो कैंडल है, एक कैंडल रहेगा, राइट। अभी ये कैंडल के 1% नीचे और 1% ऊपर का जोन को ये बफर में गिन लेगा। ठीक है, अभी ये बफर हो गया इसका कि मतलब ये जो कैंडल था पहले हमारा कंसोलिडेशन, ये कैंडल के अंदर जो स्टॉक से जो कैंडल्स बन रहे हैं इसमें ही आएगा। ठीक है, पर अभी जैसे ही मैंने EXP परसेंट 1 ले लिया, इसका मतलब ये 1% का बफर ले रहा है। तो जो भी मैंने एक कैंडल सिलेक्ट किया है बैक बार 1 में, तो इसके 1% ऊपर का रेंज और 1% नीचे के रेंज में जितने भी कैंडल्स अंदर मेरे फॉर्म हो रहे हैं, ये सारा मेरा एक कंजेशन जोन के बेसिस पे मेरे को इधर फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो आइडियली हम लोग क्या यूज करते हैं इधर, हम लोग बैक बार में इधर 2 लेते हैं आइडियली, EXP परसेंट जो बफर है उसको 0 ले लेते हैं और जोन लेंथ में मिनिमम 10 होना चाहिए और हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये अपना आइडियल कंजेशन जोन अपना बनता है। इसके ऊपर मैंने आगे क्वेरी भी डिस्कस किया है, तो इसमें अभी कोई भी डाउट्स है आपको तो हम लोग Q&A एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं। अभी 5 मिनट्स में आप लोग के जो भी डाउट्स है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी डाउट्स है आप क्वेश्चन सेक्शन में आप कमेंट डाउन कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक सबको ये सब एक्सप्लेन किया गया है, प्रॉपरली समझा है। सो मैं देख लेता हूँ अभी भी कोई क्वेश्चंस है कि नहीं है। ओके, शमित सर इज आस्किंग सर प्लीज रिपीट। ठीक है, मैं एक और बार मैं पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, या नहीं है तो मैं एक और बार पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कंजेशन जोन का स्टडी है, एस प्रेस किया, स्पाइडर कंजेशन जोन करके हमारे पास एक स्टडी है। ठीक है, इधर इधर हम लोग पैरामीटर्स में अगर आएंगे तो ये डिफॉल्ट आपके पैरामीटर्स ये सेट रहते हैं। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बैक बार का मतलब क्या है, अभी बैक बार अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, और ऐड करता हूँ, इसका मतलब क्या है ना कि अगर 3 कैंडल के इसमें कोई भी कंजेशन बनेगा, कंसोलिडेशन बनेगा, तो ये मेरा फाइंड आउट करेगा। जैसे कि मेरे को इधर दिख रहा है ये 1 2 3, 3 बैक बार का मतलब ये 3 कैंडल का लोएस्ट जोन और हाईएस्ट जोन लेता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कैंडल्स मेरे बन रहे हैं ये मेरा एक कंजेशन जोन करके मेरे को आ जाता है। जैसे कि इधर भी दिख रहा है मेरे को 1 2 3 कैंडल का फॉर्मेशन, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट। तो बैक बार का यूज ऐसे कर सकते हैं कि जितने कैंडल्स का रेंज लेना है मेरे को, वो हिसाब से हम बैक बार इधर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है इधर, EXP परसेंटेज। तो बेसिकली ये क्या है ना, अगर मैं 1% रखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये जो 3 कैंडल्स का रेंज लिया है, ठीक है,
उसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा कैंडल का हाई और कैंडल का जो लो रहेगा, इसका ये 1% का और रेंज ले लेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बफर काइंड ऑफ थिंग हो गया कि अगर ये पूरा जोन में कोई भी कैंडल्स क्लोज हो रहा है तो मेरे को इसमें मिलेगा। ठीक है, आई होप ये सेकंड वन भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, जोन लेंथ है। अभी जोन लेंथ इसमें हम लोग मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो मेरे को मिनिमम 10 कैंडल्स तो ये जोन में होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हिसाब से हम जोन लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। और एक और जो चीज है ये एरर की है। तो अभी एरर का पैरामीटर क्या है बेसिकली, अभी एरर अगर 1 है तो इधर मेरे को दिख रहा है, देखिए ये जो जोन क्रिएट हुआ है इसमें एक जो कैंडल है ये मेरे जोन के नीचे क्लोज हो चुकी है, राइट। तो ये भी मेरे को ये जोन में ही जोन बना हुआ है इधर। पर अगर मेरे को एरर 0 चाहिए, ठीक है, मेरा जो जोन है इसके अंदर ही कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो मेरा ऐसे कुछ जोन बनेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे कैंडल्स है ये जोन के अंदर ही क्लोज होंगे, एक भी जो कैंडल है वो जोन के बाहर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पैरामीटर्स है। तो यूजुअली जो हम लोग क्रिएट किया है मैंने क्वेरी, ये क्वेरी मैंने एक बार 2 लिया है, जो बफर है वो 0% का लिया है, जोन लेंथ 10 लिया है और एरर मैंने 0 लिया है। ठीक है, तो ये हिसाब से मैंने एक कंजेशन जोन क्रिएट किया है। सो अभी कोई डाउट है तो आप बताइए, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग? यस सचिन सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया। व्हाट अबाउट 1070? हाँ सर, अभी देखिए 1070 भी आप यूज कर सकते हो। तो 1070 क्या है ना, मतलब बेसिकली अगर एक कैंडल के अंदर मेरा कंजेशन बन रहा है ना और मिनिमम कैंडल्स मेरे को 7 चाहिए, राइट। तो एक कैंडल के अंदर मेरा जो भी अंदर कैंडल्स के अंदर क्लोज हो रहे हैं ये आपका एक कंजेशन जोन करके ये मेरे को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, पैरामीटर मैंने शो कर दिए। विल यू प्रोवाइड स्कैनर ऑन डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम? हाँ सर, स्कैनर मैंने बनाया है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी कोई डाउट्स है तो आप बता दीजिए। सर पैरामीटर जो हम लोग सेट कर सकते हैं ना, इसमें हम लोग 2 बैच बार ले सकते हैं। जोन लेंथ हम लोग मिनिमम 10 कैंडल्स का रख सकते हैं और EXP परसेंट और एरर हम लोग 0 सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडियल कंजेशन जोन हम लोग को फाइंड आउट होता है इसमें से। तो अगर मैं एक दो एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है, इसके हिसाब से, तो एक तो हम लोग को विप्रो दिख रहा है, ठीक है, कि ये जो पैरामीटर्स के बेसिस में कंजेशन का ब्रेकआउट मिला था, इसके बाद इसने रिटेस्ट तो किया है, पर इसने एक बुलिश ट्रेंड जो ब्रेकआउट दे के मेरे को मिल रहा था वो उसने सस्टेन किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा एक जुबिलियंट फूड है। ठीक है, जुबिलियंट फूड भी अगर हम देखेंगे तो जुबिलियंट फूड में भी देखिए, जैसे ये कंजेशन जोन में लगातार बन रहा था ये कंजेशन जोन, उसके बाद मेरे को ब्रेकआउट मिलते ही इसने क्या किया, इसने एक रैली दे दिया मेरे को। ठीक है, तो और इधर भी पीछे देख सकते हैं कि पीछे कंसोलिडेशन कंजेशन जोन बना मेरा, ये पैरामीटर के बेसिस पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ इसने और नीचे तरफ का एक रैली दी है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वो है रेडिंगटन का। भी रेडिंगटन में अगर देखूं तो रेडिंगटन में देखिए, जैसे ये देखिए कंजेशन या फिर कंसोलिडेशन बन रहा था, ये मतलब बड़ा रेंज है। ठीक है, बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने थोड़ा रैली दिया इधर। ठीक है, सेम इधर हैपन पीछे भी हुआ कि ये कंजेशन का ब्रेकआउट जैसे ही मिला मेरे को थोड़ा एक रैली मिला। ठीक है, एक दो एग्जांपल और मैं आपको भी मंथली में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मंथली में एग्जांपल है AB कैपिटल का। ठीक है, सेम पैरामीटर के साथ अभी अगर मंथली चार्ट भी देखूं मैं तो मेरे को ये दिखेगा कि अगर 2 बैक बार मैंने लिया है, ठीक है, मिनिमम जोन लेंथ 10 लिया है, तो ये मेरे को AB कैपिटल में कंजेशन इधर बना हुआ दिख रहा था। जैसे ही कंजेशन का ब्रेकआउट मिला मेरे को, उसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं है। ठीक है, ये लगातार बुलिश ट्रेंड में मेंटेन बरकरार रहा। एक और मंथली में एग्जांपल है मेरा AIA इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी AI इंजीनियरिंग भी अगर आप देखोगे तो ये जोन के बाद आपको दिख रहा रहेगा कि ये लगातार अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, ये जोन जैसे ही ब्रेक किया इसने इसने और डाउन ट्रेंड इसने दिखाया है। ठीक है,
तो ये अपना एक दो एग्जांपल हो गए। अभी अगर डेली में एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें तो वो है एमसीएक्स का। ठीक है, एमसीएक्स अगर हम देखें इधर, तो ये जो जोन बना था, ठीक है, इस जोन को इसने ब्रेक किया इधर, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आया, पर वापस इसने नीचे के लेवल्स को मेंटेन और टेस्ट किया इसने। ठीक है, तो जोन जैसे ब्रेक कर रहा है ये हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ऊपर की तरफ भी ये जा रहा है और नीचे की तरफ भी ये जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े एग्जांपल्स मैंने बताए आपको। ठीक है, अभी कोई भी डाउट्स है तो अभी मैं वापस एक बार क्यूएनए क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ आपके। ठीक है, आई थिंक जो डिस्कस किया अभी वो सबको क्लियर है। तो अभी हम लोग आते टेक्निकल क्वेरी में। अभी सबसे पहले तो हम लोग क्या है ना, टेक्निकल क्वेरी में हमारे पास इसके क्या क्या कंडीशन है वो पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी टेक्निकल क्वेरी ओपन करता हूँ और इसके जो भी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है वो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्पाइडर कंजेशन जोन नाम की का ही स्टडी है इधर भी। तो इसमें पैरामीटर्स हम लोग जो पुट किए थे चार्ट में वो सेम पैरामीटर्स पुट करेंगे। ठीक है, 2 0 सोन लेंथ शुड बी मिनिमम 10 और एरर 0। डेली टाइम फ्रेम में भी रन कर रहे हैं। इसमें आपको 6 कंडीशंस इधर मिलती है। ठीक है, कंजेशन जोन। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है ना ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है इधर, क्लोज क्रॉस अबव अपर जोन इन लास्ट 10 मार्क्स। ठीक है, जो क्लोज है मेरा अपर जोन को क्रॉस कर रहा है, लास्ट 10 बार में मैं 1 रखता हूँ, पिछले बार में ही या फिर करंट बार में ही क्रॉस कर रहा है तो मेरे को आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको ऐड करके हम लोग सिर्फ ये कंडीशन करते हैं। अभी दिख रहा है मेरे को ब्रिटानिया। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ब्रिटानिया जो है ये फेज में कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, इधर वापस एक कंजेशन जोन बना था, हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंजेशन जोन बना है इधर, और ये कल के दिन ने इसने कंजेशन जोन को ब्रेक किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो कंजेशन जोन का अपर जोन है उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो मेरे को इधर सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली आपका ये कंडीशन। अभी मैंने 1 बार रखा था, अभी मान लो मैं रखता हूँ इधर 3 बार, तो लास्ट 3 बार में जो भी कैंडल ब्रेक कर रहा है ये मेरे को आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहे हैं इधर मेरे को ये वाला कैंडल, ये वाला स्टॉक आ रहा है कि इसने सेकंड वाले बार में इसने ब्रेक किया है। ठीक है, और अगर इसको मैं और बढ़ा दूं, लेट्स से इसको 5 बार्स कर दूं, अभी रन करके देखते हैं कि कौन से स्टॉक आ रहे हैं। ठीक है, अभी इधर देखिए आ रहा है बजाज फिनसर्व आ रहा है, बजाज फिनेंस आ रहा है, ब्रिटानिया जो हम लोग ने देख लिया, और एक श्याम मेटल आ रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो जो कंजेशन जोन बना था उसका वो ब्रेक करके अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रेक रिटेस्ट करके ये वापस ऊपर के जोन पे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड इसमें चालू हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इधर, नेक्स्ट कंडीशन है वो है क्लोज क्रॉस बिलो लोअर जोन इन लास्ट 10 मंथ्स। कि अगर जो लोअर जोन बन रहा है उसको मेरे को क्रॉस कर रहा है कोई भी स्टॉक, ठीक है, तो मेरे को इधर पता चल जाएगा। अभी लेटेस्ट कोई एग्जांपल है कि नहीं वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, लेटेस्ट एग्जांपल्स अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें है बाला माइंस है, मॉइल है। ये मॉइल जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एक प्रॉपर एक कंजेशन बना है, कि जैसे कि हम देख पा रहे थे कि ये जो 2 कैंडल का कंजेशन जोन बन रहा था अंदर, उसके बाद ये अपर जो लेवल था इसको ये मतलब एक भी बार क्लोज कर नहीं पा रहा था। ठीक है, बहुत टाइम इसने ट्राई किया, 1 2 3 4 5 6 6 7 बार इसने ट्राई किया पर ये क्लोज कर नहीं पाया। उसके बाद ये सेम जो जोन था अपर जोन उससे रिवर्स करके ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और एग्जांपल मतलब एक और चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर कंजेशन जोन बन रहा है, ठीक है, तो मेरे अपर जोन या फिर लोअर जोन में कोई स्टॉक है, ठीक है, तो ये अपर जोन में ये ब्रेक नहीं कर पा रहा,
तो हम लोग सेल या फिर शॉर्ट करने के उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ये मतलब जोन ब्रेक कर नहीं पा रहा तो हम लोग उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक और स्टॉक आ रहा है वेल्सपन एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इसमें भी जोन क्रिएट हुआ था और अभी ये जो लोअर जोन है उसको ये ब्रेक कर चुका, ठीक है। तो आई होप ये दो कंडीशंस आपको क्लियर हुई रहेगी। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है ना, वो है इनसाइड कंजेशन जोन। तो जो भी स्टॉक अगर मेरे कंजेशन जोन में है, मेरे को सिर्फ वो पता लगाना है, तो मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे आ रहे हैं जो मेरे कंजेशन जोन के रेंज में है, ठीक है। तो जिधर भी हमारे पैरामीटर के हिसाब से कंजेशन बना है, वो मेरे को इधर से पता चल जाएगा कि 50 स्टॉक्स में ये कंजेशन बना है हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से, और ये सारे वो जोन में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ये क्या डिफाइन कर रहा है ना, हमारा रेंज कितना है, ठीक है, अपर एंड लोअर रेंज कितना है हमारा, ये डिफाइन कर रहा है। तो मेरा जो कंजेशन है, मेरे को कितने रेंज में कंजेशन चाहिए, मेरे को ये डिफाइन करके चाहिए, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ कि मान लो जो मेरा रेंज चाहिए, मेरे को 5% के रेंज का ही कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो आई कैन यूज दिस थिंग, ओके। upper zone within percentage of lower zone 5% and modified. Now if I use this, ठीक है, मेरे को दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं इधर, एक तो है फेडरल बैंक और दूसरा है मैप माई इंडिया। तो जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, मैप माई इंडिया और फेडरल बैंक में मतलब बहुत ही टाइट रेंज में इधर कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ही बहुत ही डिक्रीज हो गया है इधर, ठीक है, ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, वॉल्यूम भी कम है मैप माई इंडिया में, और कंसोलिडेशन भी एकदम टाइट रेंज में चल रहा है। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन्स है, हम लोग मतलब ये दो तीन स्टॉक्स है वो हम लोग फाइंड आउट करके रख सकते हैं। इसमें अगर ब्रेक कर रहा है तो मेरा एक बड़ा मोमेंटम इधर मिल सकता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आपको जो भी अपर जोन या फिर लोअर जोन, जो लास्ट कंडीशन है, अगर उसके ऊपर आ रहा है स्टॉक, ठीक है, तो मेरे को ये पता चल जाएगा। अभी मान लो आपको हाई पे चेक करना है, आपको लो पे चेक करना है, कि आपको क्लोज पे चेक करना है, ठीक है, आप तीनों पैरामीटर में चेक कर सकते हो इधर। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इनपुट विद इन परसेंटेज रेंज इधर 1% ले लेता हूँ और मैं क्लोज पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को वो सारे स्टॉक्स आएंगे जो मेरा कंजेशन जोन का अपर जोन है, ठीक है, उसकी विद इन 1% रेंज में ये है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी ना, कि ये जो जोन बना है, ठीक है, अभी अपर जोन में अगर है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि ये नीचे के जोन में वापस रिटेस्ट करने आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ना, हम लोग दो कंडीशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, कि मेरे को जो कंजेशन जोन है वो मेरे को बड़ा जोन चाहिए, और ये दूसरा कंडीशन हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि इनपुट विद इन अपर जोन विद इन X% में 1% या फिर 2% डाल सकते हैं। अभी इसका अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं ना, तो एशियन पेंट का एक मंथली चार्ट का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए इधर दो कैंडल के जो कंजेशन बना है, और बहुत टाइम से इसने सेम कैंडल का कंजेशन में ये ट्रेड करता रहा, ठीक है। अभी ये जो कंजेशन बना हुआ था, इसमें कितने कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल तो मिनिमम है इसमें, राइट। तो मतलब मेरे को जैसे ही ये स्टॉक इधर आता तो मेरे को पता चल जाता कि ये स्टॉक में अभी गिरावट आने वाली है, क्यों, क्योंकि मैं यही वाला कंडीशन यूज करता कि इनपुट विद इन X% ऑफ अपर जोन, ठीक है। तो अपर जोन के जैसे ही ये मेरा हाई नजदीक आया तो मैं ये लेवल से मैं सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। एक और मेरे को ऑप्शन इधर मिलता है, ठीक है, कि लोअर जोन के ऊपर आया स्टॉक, वैसे ही मैं इधर बाय करके चल सकता हूँ, कि मतलब अपर जोन या फिर जो रेजिस्टेंस है इसका, उधर तक तो ये मिनिमम आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ये कंजेशन जोन में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, पर सिर्फ अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा रेंज है वो रेंज थोड़ा बड़ा रहना चाहिए कंजेशन का, ये मिनिमम 15-20% का रेंज होना चाहिए। तो ये मतलब आपको एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है, ठीक है।
अभी जैसे ये एशियन पेंट ने ये जोन ब्रेक किया, आप देख सकते हो ये दूसरे सपोर्ट पे वो जल्द से जल्द आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल ये इधर कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा। तो और लास्ट जो कंडीशन है वो है इनपुट विद इन X% ऑफ लोअर जोन। तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं 1% लेके देखते हैं, ठीक है। ये जो भी स्टॉक है डेली में 1% की रेंज में, अभी इसमें क्या है देखिए, ये नीचे से घूमा है, राइट। इसमें चांस है कि ये जो जोन है ये लेवल से वापस एक ऊपर का रैली थोड़ा दे सकता है, ठीक है। फेडरल बैंक है, फ्यूजन है, तो ये सारे जो जोन्स बन रहे हैं नीचे से ये ऊपर का एक रैली दे सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक और पोल लॉन्च करूंगा, तो आप पोल का जल्द से जल्द जवाब दीजिए, ठीक है। मैं पोल अभी लॉन्च कर रहा हूँ। शुड वी टेक एंट्री इफ स्टॉक इज रिटेस्टिंग अपर जोन आफ्टर एंट्री, ठीक है। सो अगर स्टॉक जो है वो रिटेस्ट कर रहा है, अभी मान लो ये कंजेशन जोन है, ठीक है। अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ऊपर गया था और अभी ये वापस सेम लेवल्स या फिर थोड़े नीचे के लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है, तभी हमको एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो पोल लॉन्च किया है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक बहुत जनों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करते हैं जो ब्रेकआउट देके वापस वो जोन को रिटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टॉक जो आ रहा है वो है बीडीएल। अभी बीडीएल अभी ये रिसेंट लेटेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अभी ये जो ब्रेकआउट मिला था मेरे को वो मतलब बड़े वॉल्यूम के साथ मिला, ठीक है। ये बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था, इसने रिटेस्ट किया, ये जो अपर जोन था इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। तो अगर आपने ब्रेकआउट पे भी एंट्री लिया है तो आपके पास एक और मौका मिल रहा है कि ये जो अपर जोन के अराउंड आ रहा है स्टॉक प्राइस, तो इसमें आप एक और एड ऑन करके आप एवरेज कर सकते हो। इधर से पॉसिबिलिटी क्या है, इधर से पॉसिबिलिटी है कि ये और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल है वो 1400 1450 तक ये स्टॉक आ सकता है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है एस का एग्जांपल। एस का एग्जांपल भी आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरा जोन बना हुआ है, जोन को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप लोग ने ब्रेकआउट पे एंट्री अगर ले लिया रहेगा तो हम लोग इधर रिटेस्ट करने में भी इधर और एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने देखा इधर जैसे रिटेस्ट किया इसने, इसने वापस एक बुलिश ट्रेंड इसका बरकरार रखा और मेरे को मतलब इसमें टारगेट मेरे डेफिनेटली इधर हिट हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल है बायोकॉन, ठीक है। बायोकॉन भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे की जोन पे रिटेस्ट कंजेशन बना रहा था, इसने एक ही कैंडल में बड़ा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस अपर जोन पे आया, इसने रिटेस्ट किया और वैसे वापस इसने टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मतलब ये कंजेशन जोन है, कंजेशन का ब्रेकआउट करके अगर रिटेस्ट भी करते हैं तो हमारे पास एक ये चांस बनता है कि इसमें हम लोग डेफिनेटली एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ है सबको, जो भी मैंने कवर किया है इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर कोई डाउट्स है तो आप अभी क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो। व्हाट शुड बी द टारगेट परसेंटेज? सर टारगेट परसेंटेज आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रखिए, पर मिनिमम आप 7 to 10% टारगेट तो इसमें रख ही सकते हो, ठीक है। अगर स्विंग बेसिस पे हम कर रहे हैं तो आप लोग 7 to 10% मिनिमम आपका टारगेट रहना ही चाहिए। Ninad sir is asking, while using the scanner for daily and monthly scanning, do we need to change any setting? Yes sir, अभी देखिए ये जो स्कैनर है, ठीक है, अभी ये डेली बेसिस पे हम लोग रन कर रहे हैं, राइट। अभी मान लो मेरे को ये जो सेम सेटिंग्स के साथ मेरे को इसमें मंथली का ये स्कैनर लगाना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ ना, मैं MISC में आके आई कैन गो टू मंथली, ठीक है, चेंज किया और मैंने रन किया, तो ये मतलब मेरे को मंथली के हिसाब से ये मेरे को स्कैनर में ये बता रहा है, ठीक है। ये जो भी स्कैन स्टॉक स्कैन होके आ रहे हैं ये सारे मतलब
जो मेरा कंडीशन है वो मंथली में फुलफिल कर रहे हैं। भाई मंथली में आप लोग क्या यूज कर सकते हो पैरामीटर्स, डेली वीकली मंथली तीनों में आप पैरामीटर्स ये यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बफर जोन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बफर जोन 0.25 का रख सकते हो या फिर 0.5 का बफर जोन ऐड कर सकते हो इसमें, अगर मंथ डेली या फिर वीकली कर रहे हो। और एरर में भी आप 1 रख सकते हो, ठीक है। पर बेस्ट तो हमारा यही रहेगा कि 2 0 10 0 पे हम लोग ये पैरामीटर्स को सेट करें, ठीक है, सारे टाइम फ्रेम। इन विच टाइम फ्रेम द कंसोलिडेशन इज मोर इफेक्टिव? सर अगर हम ये देखें तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम वीकली या फिर मंथली में ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर मेरे को कंसोलिडेशन में मेरे को ट्रेड लेना है तो मेरे को वीकली और मंथली में मेरे को इधर बड़े रेंज के कंसोलिडेशन मिल सकते हैं, ठीक है। मैं स्कैनर से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि 20% या फिर 25% का कोई जोन बना है, तो मेरे को वो जोन मैं फाइंड स्कैनर से कर सकता हूँ। तो वीकली या फिर मंथली थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में ये ज्यादा यूजफुल रहेगा अगर आप कंजेशन में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। ब्रेकआउट का मैंने ऑलरेडी स्कैनर बना चुका है, अगर ये कंजेशन जोन है इसमें कोई ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक तो मैंने स्कैनर बनाया है, वो आगे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स तो मैंने बता ही दिए, जैसे कि विप्रो का एग्जांपल देखा हमने, ब्रेकआउट रिटर्स करके इसने रैली दिया, ठीक है। सेम जो हमारा सेटिंग है ये सेटिंग के साथ है। भारत फोर्ज में भी जैसे ही ब्रेकडाउन मिला तो इसने और नीचे के लेवल्स अपने को दिखाए। मन्नापुरम का भी एक और एग्जांपल है, ब्रेकआउट मिला था मेरे को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम भी इसमें मैटर करता है, अगर मेरे को ये कंजेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है वॉल्यूम के साथ तो ये और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। और लास्ट एग्जांपल है लोधा का, तो लोधा में भी जैसे कंसोलिडेशन, मतलब ये बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट मिला और ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स और दिखाए इसने, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स तो देख लिए। तो जो मैंने क्वेरी बनाया हुआ है ना, वो ऑलरेडी आपको डाउनलोड फाइल्स ओवरराइट एग्जिस्टिंग MISC गेट फाइल लिस्ट webinar.zip में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये फाइल आप डाउनलोड करोगे आपको क्वेरी और चार्ट आपको दोनों ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले चार्ट लोड कर देता हूँ। लोड चार्ट करना है, स्पाइडर कंजेशन के नाम पे चार्ट है, ठीक है। ये ओपन कर लो और नेक्स्ट अभी हम लोग लोड करेंगे टेक्निकल क्वेरी, लोड करेंगे और इधर स्पाइडर कंजेशन के नाम पे ही क्वेरी है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्वेरी में भी दो हिसाब से बनाया है कि अगर आपको कंजेशन में ट्रेड करना है, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है, तो ये दो कंडीशन में मैंने क्वेरी बनाया हुआ है। अभी मैं क्वेरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेरी में सबसे पहले तो क्या लिया है ना, हम लोग ने ये जोन क्रिएट किया है, ठीक है। तो अपर जोन और लोअर जोन का जो ये डिफरेंस है वो 25% रहना चाहिए, ठीक है। तो 25 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 25% या फिर 20% का जो जोन बन रहा है आप इधर से मॉडिफाई कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने 25% रखा है। नेक्स्ट जो रखा है मैंने ब्रेकआउट के लिए ये वाला कंडीशन यूज किया है, क्लोज अबाउ अपर जोन इन लास्ट एन बार्स, ठीक है। और ब्रेकडाउन के लिए अपोजिट कंडीशन यूज किया है, क्लोज बिलो लोअर जोन इन लास्ट एन बार्स। एक और कंडीशन एड ऑन किया है इधर वॉल्यूम का, प्राइस अबाउ एवरेज बाय X%, ठीक है। और इसमें हम लोग ने इनपुट लिया है वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम का जो स्टडी है वो है एवरेज ऑन OHLC VUT, ठीक है। तो इधर हम लोग 10 कैंडल का जो वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम पे प्लॉट कर रहे हैं। और इधर कंडीशन में हम लोग ने, मतलब मैंने 10% का रेंज लिया है, अगर मेरा पिछले 10 कैंडल से 10% भी ज्यादा वॉल्यूम ये कैंडल में बन रहा है, ठीक है, और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मेरे को इसमें पता चल जाना चाहिए। और जो लास्ट दो कंडीशन दिए है वो ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी के लिए है। तो अगर मेरा ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरे को ग्रीन बॉडी के साथ चाहिए, और मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है कोई जोन का तो मेरे को एक रेड बॉडी के साथ चाहिए, ठीक है। तो ये जोन पे बनाया है। और जो दूसरा वाला जोन हम लोग ने इधर क्रिएट किया है ना, ये भी डेली पे ही क्रिएट किया हुआ है। तो इसको आप क्या है ना, इसको हम लोग वीकली पे भी इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंजेशन है इसको अगर अब वीकली में हम लोग कंजेशन ट्रेड करना है, ठीक है, कि अपर जोन पे जैसे ही आ रहा है मेरे को शॉर्ट करना है और लोअर जोन पे जैसे ही आ रहा है मेरे को बाइंग करना है, तो इसके लिए हम लोग ने सिंपली ये वाला कंडीशन यूज किया है कि अपर जोन विद इन लोअर जोन 25%,
ठीक है। कंजेशन का जो इनपुट है अपर जोन में अगर आ रहा है मेरा क्लोज 1% की रेंज में तो मेरे को बता दे, और लोअर जोन के लिए इनपुट विद इन x% ऑफ लोअर जोन 1% के रेंज में आ रहा है तो ये मेरे को बता दे। ठीक है, तो अभी मैं सिंपली अभी क्वेरी ऑफसेट 1 पे रन करके एक दो रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि टाइम फ्रेम चेंज कैसे करके करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रेकआउट में, अभी रिसेंट ब्रेकआउट में ब्रिटानिया आ रहा है, तो बीओ मतलब ब्रेकआउट में इधर मेरे को एक ब्रिटानिया का स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे मेरे ब्रेकआउट के, तो ये स्टॉक को आप नजर में रख सकते हो कि ये जो जोन है बड़ा कंजेशन का जोन बना था, कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद ये ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, अभी विद इन 1% ऑफ लोअर जोन में, भी 1% ऑफ लोअर जोन में मेरे को फेडरल बैंक आ रहा है, फ्यूजन आ रहा है, तो ये सारे स्टॉक में क्या है ना, अभी इसमें देखोगे कि ये जोन में मतलब ट्रेड हो रहा है, राइट। तो अगर 1% ऑफ लोअर जोन में है तो इसमें एक चांस और है, इधर से ये वापस रिवर्स करके 195 के लेवल ये दिखा सकते। ठीक है, यूटीआई एमसी है सेम, ये जो जोन पे ट्रेड हो रहा है इसमें क्या है, नीचे के लेवल्स के वापस ऊपर के लेवल ये दिखा सकता है, 1250 1260 तक आ सकता है। ठीक है, एक और जो जोन क्रिएट हुआ है वो जाइडल जोन क्रिएट हुआ है, इसमें भी हम लोग अगर देखें तो सेम है, कंजेशन बन रहा है, अपर जोन को टेस्ट किया, वापस लोअर जोन के पास आ रहा है, ये टेस्ट करके वापस अपर जोन के पास पॉसिबिलिटी है आ सकता है, और विद इन 1% ऑफ अपर जोन में मेरे को आ रहा है मैप माई इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, इसमें टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है तो 1% ऑफ अपर जोन में आ रहा है, तो इसमें अगर इतना टाइट कंसोलिडेशन होगा तो इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक रिसेंट एग्जांपल है इंडिया सीमेंट। ठीक है, अभी ये देखोगे कि इसमें मतलब कंसोलिडेशन मतलब बहुत ही एकदम गुड कंसोलिडेशन हो रहा था, जैसे ही ब्रेक किया ये बहुत ही नीचे आ गया। ठीक है, तो ये है, ये क्वेरी है, क्वेरी आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी मान लो मेरे को 3-4 कंडीशन है, ठीक है, ये मेरे को मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में यूज करनी है, तो मैं कंडीशंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ इधर MIC में जाके, सिलेक्टेड को मैं इधर वीकली में स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये 3 वीकली में स्विच हो गई है, अभी मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, और अभी हम लोग वीकली की कोई रिजल्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, यस, तो वीकली में ये आ रहे हैं मेरे को रिजल्ट, वीकली चार्ट करते हैं। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्री आ रहा है, सिप्ला आ रहा है, रेनबो आ रहा है। ठीक है, अभी रेनबो में अगर आप देखोगे तो ये नीचे के लेवल से इसने डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनाया है। ठीक है, और ये लेवल ब्रेक नहीं किया है इसने वीकली में, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक दो वीक में इसमें मूवमेंट मिलेगा और 15-1600 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंजेशन को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ रहा है उसमें भी हम लोग इधर ट्रेड कर सकते हैं। तो क्वेरी में दोनों मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, जैसे ही आपको यूज करना है वैसे आप इसमें यूज कर सकते हो। आई होप ये सब क्लियर हुआ रहेगा, अगर कोई डाउट्स है तो अभी बता दीजिए। सचिन सर इज आस्किंग प्लीज रिपीट हाउ टू सर्च द क्वेरी। सचिन सर, आपको करना क्या है ना, सबसे पहले तो फाइल में आके डाउनलोड फाइल्स ओवर एट एग्जिस्टिंग को टिक करके MIC में आना है। ठीक है, गेट फाइल इस करोगे तो आपको वेबिनार डॉट जिप इधर फोल्डर मिलेगा फाइल, इधर क्लिक करके आप जैसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड खत्म हो गया उसके बाद आपको सिंपली इधर चार्ट पे आ जाना, लोड चार्ट पे जैसे आओगे आपको स्पाइडर कंजेशन नाम का चार्ट मिल जाएगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेरी, क्वेरी भी सेम आपको जैसे क्वेरी का फोल्डर को भी ओपन करोगे, ठीक है, मैंने विंडो ओपन किया, लोड किया, तो मेरे को ये सेम नाम से क्वेरी भी मिल जाएगा, स्पाइडर कंजेशन। तो मैं इधर क्लिक करके ये ओपन करूंगा, वैसे ही मेरा पूरा क्वेरी लोड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपने समझा रहेगा।
हाउ टू डाउनलोड रोहन सर, मैंने अभी बताया हाउ टू डाउनलोड. Ninad sir is saying very nice webinar and well explained. This is quite useful. Very thank you. Thank you so much, Ninad sir. Please share the PPT and instruction manual. Okay, सागर सर आपको PPT शेयर कर देंगे. ठीक है. Any more doubts you can ask now, or we can wrap up, or we can wind up with the webinar now. कैन वी अप्लाई फॉर इंट्राडे? नहीं सर, इसमें इंट्राडे में क्या है ना, अभी तक इंट्राडे में मैंने टेस्टिंग किया नहीं है. मैंने मतलब ये जो कंजेशन है लॉन्ग टर्म मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में टेस्टिंग किया है. अभी तक इंट्राडे में कोई टेस्टिंग किया नहीं है. अगर मैं इंट्राडे में कोई टेस्ट करके ला रहा हूँ तो नेक्स्ट वेबिनार हम लोग का, मैं जो भी लूंगा नेक्स्ट वेबिनार, वो मोस्टली इसमें हो सकता है. ठीक है, अगर इंट्राडे में यूज हो रहा है तो हम लोग ये भी कवर ऑन कर लेंगे, कंजेशन जोन ऑन इंट्राडे. When will be the video available? सर वीडियो आपको क्या है ना, अभी जैसे वेबिनार खत्म होगा ना, वापस आप जो लिंक पे रजिस्टर करोगे ना, तो आपको ये पूरा रिकॉर्डिंग इधर ही मिल जाएगा लिंक पे ही, और यूट्यूब पे विद इन 2 to 3 days अपलोड हो जाएगा. ठीक है सागर सर. डू वी नीड टू चेंज द पैरामीटर फॉर वीकली एंड मंथली? नहीं, पैरामीटर्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, जो पैरामीटर सेट है वो मतलब परफेक्ट है, तीनों टाइम फ्रेम पे अच्छे वर्क करते हैं. 2010 parameters. Okay sir, and how to change day to week time frame? ठीक है, वो वापस क्लियर कर देता हूँ. अभी जो चार्ट पे स्टडी लगा हुआ है वो सारे टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है. ठीक है, अभी सिर्फ आपको अगर इसमें चेंज करना है ना, क्वेरी में, कि मान लो जो मेरे को क्वेरी है, मेरे को दूसरा जो पार्ट है मेरे को सिर्फ वो चेंज करना है, 9, 10 और 11 वाला. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि मेरे को ये जो कंजेशन जोन में ट्रेड करना है पर मेरे को वीकली बेसिस पे करना है, तो मैं ये सिर्फ ये तीनों सिलेक्ट करूंगा, MIC में आऊंगा, इसको वीकली कर दूंगा और सिलेक्टेड कंडीशन को मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो ये तीनों मेरा वीकली कंडीशन में सेट हो गया है. इसको अभी अनटिक करके मेरे को ये दोनों सिर्फ रन करना है, तो मैं ऐसे रन कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द टाइम फ्रेम. ओके, और अगर आपको पूरा ही जो क्वेरी है वीकली पे करना है, मंथली पे करना है, तो आप ऑल पे आके ये कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारा वीकली या फिर मंथली पे हो जाएगा. वेरी गुड, बट इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन शॉर्ट टाइम. राजेश सर, ये वीडियो आप एक और बार देख सकते हो, तो आपको मतलब प्रॉपर थोड़ा आइडिया और लगेगा कि कंजेशन जोन क्या है, कैसे यूज कर सकते हो. पीपीटी भी एक बार गो थ्रू करो तो आपको और आइडिया लग जाए. ठीक है राजेश सर. ओके, सो आई थिंक सबको क्लियर है. तो अभी अगर कोई भी डाउट्स है or any queries, you can contact on 02235018383, or you can drop us a WhatsApp message on 897699160 or 02, or you can drop us an email on support@spidersoftwareindia.com. अभी मैं एक पोल लॉन्च करूंगा कि आपको ये जो वेबिनार है वो वेबिनार आपको कैसा लगा, कि आपको अगर मैं आगे इंट्राडे का फाइंड आउट करता हूँ, वो अगर आपको चाहिए रहेगा, कोई वो भी फीडबैक रहेगा, वो आप सिंपली इसमें आप दे सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि सब लोग जल्द से जल्द पोल का रिप्लाई दे दे और एक सिलेक्ट कर ले. थैंक यू सो मच.